سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چھٹے روز بھی جاری۔ گڈز ٹرانسپورٹ رہنما ملک شہزاد اعوان نے پنجاب حکومت کے کراچی آ کر ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا۔ کہا صوبائی حکومت نے رابطہ کیا لیکن جب تک وہ کراچی نہیں آتے بات نہیں ہو سکتی۔ سندھ حکومت کی طرف سے رکن سندھ اسمبلی فاروق اعوان نے گڈز ٹرانسپورٹرز سے ملاقات کی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ پنجاب میں مال بردار گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کے خلاف گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری۔ ماری پور ہاکسبے روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں، اسٹینڈ پر ہڑتالی کیب میں بھی بدستور قائم۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹر الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے ہم سے رابطہ کیا، تاہم ہم پنجاب نہیں جائیں گے، وہ کراچی آئیں تو بات ہو سکتی ہے۔ ہم کراچی سے لاہور جا کر آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، آپ پنجاب سے آ کر ادھر کراچی میں ہمارے احتجاجی کیمپ میں میں نے جو ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اپنا 10 لوگوں پر مشتمل، ان کے ساتھ ہماری کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کرے گی۔ اور اس ٹائم تک میں یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور جو سندھ گورنمنٹ کی جتنی بھی ہماری ڈیمانڈ ہیں، جب تک سارے کے ساری ڈیمانڈ ہماری تسلیم نہیں ہو جاتی اس ٹائم تک ہماری پرامن ہڑتال جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ملک شہزاد اعوان کا کہنا تھا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پر سندھ حکومت کو مزید 2 دن کا وقت دیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے ہمارے پاس یہاں کیمپ میں آیا تھا، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ اپنا مارچ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے آپ مؤخر کریں، تو ہم نے ان سے کہا کہ 24 گھنٹے نہیں، ہم آپ کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ تنظیموں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں مال بردار گاڑیوں کا پہیہ چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ پورے شہر میں اس وقت موجود، پورے شہر کے علاوہ پھر اندرون سندھ اندر پنجاب میں بھی اور ہر جگہ گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہیں، صرف اسی لیے کہ ہمارے مطالبات جب تک پورے نہیں ہوں گے ہم ہڑتال جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب رکن سندھ اسمبلی فاروق اعوان نے بھی ٹرانسپورٹر سے ملاقات کی۔ گڈز ٹرانسپورٹر کے رہنماؤں کو بتانا ہے کہ صوبائی و وفاق سے مذاکرات کے لیے مختلف کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں، حکومت نے یقین دہانی کرائے تو ہڑتال ختم کر سکتے ہیں۔ کیمرمین سجاد رئیس کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی ایئرپورٹ پر غیر ملکی ایئر لائن کے دفتر سے لاش برآمد۔ لاش جنا ٹرمینل کی 4تھی منزل کے دفتر سے ملی ہے۔ شام 7 بجے ایئر لائن کے عملے نے دفتر کھولا تو لاش ملی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاش اسٹیشن مینیجر عرفان بیگ کی ہے۔ بات کریں گے خورشید رحمانی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، جینا ٹرمینل پر غیر ملکی ایئر لائن کی بند دفتر سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لاش جو ہے وہ نجی ایئر لائن کے اسٹیشن مینیجر عرفان بیگ کی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ لاش جینا ٹرمینل کی 4تھی منزل پر نجی ایئر لائن کے بند دفتر سے ملی۔ لاش 1 دن پرانی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مرزا عرفان بیگ کی لاش ہسپتال منتقل کی جا رہی ہے، جبکہ اسٹیشن مینیجر کل رات سے لاپتہ تھے۔ نجی ایئر لائن کے عملے نے آج شام پرواز کے وقت جو ہے دفتر کھولا تو لاش برآمد ہوئی۔ ایئرپورٹ پر تعینات وفاقی محکمہ صحت کے ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ سرٹیفکیٹ کے مطابق جو ہے وہ موت جو ہے وہ دل کا دورہ پڑنے سے ہونے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اہل خانہ کا مرزا عرفان بیگ سے کل رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ۔ ناگن چورنگی میں ٹرک کی ٹکر سے محنت کش کی موت۔ کئی روز گزرنے کے باوجود انتظامیہ رابطہ نہ کر سکی۔ حمید الرحمان کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ متاثرہ خاندان نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے کچرا ٹرک مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کراچی میں شہری اپنی جمع پونجی محفوظ رکھنے کے لیے بے بسی کا شکار ہیں۔ موٹر سائیکل جرائم پیشہ افراد کے لیے آسان شکار بن گئی ہے۔ شہر قائد میں چوروں اور لٹیروں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہو رہی۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ موٹر سائیکلز کرمنلز کا آسان شکار بننے لگی۔ روزانہ 100 شہری موٹر سائیکلوں سے محروم ہونے لگے۔ پولیس چوروں اور لٹیروں کو پکڑنے میں ناکام۔ 80% موٹر سائیکلز چوری، 20% گن پوائنٹ پر چھینی جانے لگی۔ تھانوں میں موٹر سائیکل چوری کی رپورٹس کے انبار لگ گئے۔ CPLC کے اعداد و شمار کے مطابق ہر ماہ 3000 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری یا چھینی جاتی ہیں۔ AVLC پولیس موٹر سائیکلز کی ریکوری میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ پولیس کی کارکردگی محض 20% ریکوری تک محدود۔ شہری شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ چور اور لٹیروں کو روکنے کے لیے کب اور کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ معراج اختر، سٹی 21۔ جمشید ٹاؤن، جہانگیر روڈ اور مارٹن کوارٹر کی سڑک کئی سال سے تباہ حال ہے۔ کچھ روز قبل سڑک میں گاڑی بھی دھنس گئی تھی۔ سڑک پر سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا ہے۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، ہر طرف گندگی کے ڈھیر۔ شہر قائد کے المیہ کب کم ہوں گے؟ جمشید ٹاؤن کی UC 4 اور 5 کے درمیان واقع سڑک خستہ حالی کی تصویر بن گئی۔ جہانگیر روڈ، شاہ نجف روڈ پر جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں۔ سڑک پر سیوریج لائن بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں چند روز قبل سڑک پر ایک گاڑی گڑھے میں دھس گئی تھی۔ خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا۔
मुतासिरा सड़क पर मकीनों और राहगीरों समेत कारोबारी सरगर्मियां भी मान पड़ने लगी। रोजाना का यही हाल है, 2-3 हादसे यहाँ पे लाजमी होते हैं। ये गटर के ढक्कन खुले हुए, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हादसा। अभी ये चिंची रक्षे चल रहे हैं, बेचारी पूरी फैमिली यहाँ पे गिर गई। यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। शहरियों का कहना है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से नई सीवरेज लाइन डलवाई गई थी, लेकिन चंद ही रोज में वो भी टूट फूट का शिकार हो गई। कंप्लेंट क्या, वो आते हैं बंदे, तस्वीरें उतारते हैं, चले जाते हैं, बनता है टूट जाता, बनता है टूट जाता। सिर्फ ये है कि जब मुहर्रमों में अहले तशीयों का टाइम आता है ना, जब बेचारे वो अपनी मदद से कुछ करते हैं तो करते, वरना तो नहीं होता। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़क और सीवरेज के निज़ाम की मरम्मत की जाए ताकि कीमती जानों और इमलाक को नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची में जारी ई चालान पर MQM पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली शेख अब्दुल्ला ने हुकूमत से ई चालान ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि ई चालान पर नज़रसानी से मुतल्लिक कमेटी भी तश्कील दे दी है। चालान की रकम कम की जाएगी ताकि महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कमी नहीं आई है, मुल्क के वाक़यात बढ़ गए हैं। ये जो ई चालान का सिलसिला है, बेसिकली ये मोटर बाइक और कार, जो छोटी व्हीकल्स हैं उसके ऊपर हो रहे हैं और लोगों पे एक बर्डन आया है। जो लोअर मिडिल क्लास है उसके ऊपर बर्डन आया। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि कमर्शियल जो हैवी ट्रैफिक चल रहा है उसके ऊपर कोई चालान हो रहे हैं या वो कैमरे की जद में आ रहे हैं और उनको कोई पे करना पड़ रहा है, प्लेंटी आ रही है, उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बल्कि वो शुतर बेमहार की तरह पूरे कराची में दंदनाते फिर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे 4-5 अमवात मुफ्त बांटते फिर रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट उसको तवज्जो देती है, ना मेयर साहब उसके ऊपर कोई तवज्जो देते हैं कि उसका कोई सद्देबाब किया जाए, उसकी कोई रोकथाम की जाए। अभी 3 दिन पहले 4 के चौरंगी पे फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म आबिद, माँ बाप का अकलौता बेटा, वो वाटर टैंकर ने कुचल के उसको शहीद कर दिया वहाँ और कोई पुरसाने हल नहीं है। आज तक गवर्नमेंट के कोई लोग उसके पास ऑफिशियल्स नहीं गए ये पूछने के लिए उसके माँ बाप से कि तुम किस हाल में। वो जिंदा दरगोर होगा, उनका घर उजड़ गया, अब उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, हर इलाके में हो रहे हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट महफूज नहीं है। ई चालान की बुनियाद जो इन्होंने डाली थी, इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, हर इलाके में हो रहे हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट महफूज नहीं है। ई चालान की बुनियाद जो इन्होंने डाली थी उसके ऊपर MQM ने भरपूर एहतजाज किया है और हमारे अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इसके ऊपर कॉल अटेंशन पे भी हम रेजोल्यूशन भी लाए थे इसके ऊपर। और हमने जब ये परसों ये बात हुई तो ज़िया नंजार साहब होम मिनिस्टर, उन्होंने इसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान किया है जिसमें अली खुर्शीदी साहब भी हैं, हमारे पार्लिमानी लीडर जो हैं इफ्तिखार आलम साहब हैं और हमारे ताहा साहब डिप्टी पार्लिमानी लीडर, ये हमारी तरफ से हैं। बाकी उन्होंने अपने पीएस पार्टी को लिए हैं लोग। इस तरह एक पार्लिमानी कमेटी बनाई है, ये जायज़ा लेगी इस ई चालान के सिलसिले में। इसमें हो सकता है कि जो प्लेंटी है उसको कम किया जाए, हो सकता है उसके लिए कोई और तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। अभी इस कमेटी के इजलास होंगे तो पता लगेगा। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का मिशन, अब UC चेयरमैन भी इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि दुनिया भर से पोलियो का खात्मा हो चुका है मगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो मौजूद है। पोलियो के खात्मे और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। पोलियो के खात्मे का मिशन, वफाक सूबा और मुकामी बल्दियाती नुमाइंदे भी इन एक्शन। पोलियो के खात्मे के लिए UC चेयरमैन भी किरदार अदा करेंगे। आर्ट्स काउंसिल में पोलियो मुहिम के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, दुनिया भर से पोलियो का खात्मा हो चुका है मगर अफसोस है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो मौजूद है। आसफा भुट्टो और सूबाई हुकूमत भी इस मुहिम की निगरानी कर रही है और वो उनका मिशन जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, वो आज उनकी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा उसको आगे लेकर चल रही है क्योंकि वो पाकिस्तान की पोलियो एम्बेसडर है और ये उनका विजन है जो वो सारे पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कोशिश कर रही हैं और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा या चीफ मिनिस्टर साहब या हम सब उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
मेयर कराची ने एक सवाल के पूछे गए जवाब में भारतीय फिल्म धुरंधर को पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दिया और कहा कि मोदी सरकार को पीपल्स पार्टी के बयानिए से तकलीफ है। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात के कसाई का लक़ब दिया है। कोई ना कोई शायद पीपल्स पार्टी के बयानिए से मोदी सरकार को परेशानी है कि वो इस तरह की अब जब जंगी मैदान में, जब सिफारती मैदान में वो हार गए तो अब उन्हें ये फिल्मों का मैदान स्टार्ट किया है। मोदी को ये याद रखना चाहिए कि वो गुजरात का कसाई था और ये लक़ब उसको मेरे पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लक़ब दिया था। मेयर कराची ने एमक्यूएम पाकिस्तान को भी खूब आड़े हाथों लिया और फारूक सत्तार पर भी तंज के तीर चलाए। कैमरामैन नागर रफीक के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नॉर्थ कराची में इंडस यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि भारत की जानिब से वैक्सीन की फराहमी बंद होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी वैक्सीन तैयार करने का फैसला किया है। मुल्क में बलदियाती निज़ाम ना होने के बायस बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। आबादी में तेजी से इजाफा खतरनाक करार। नॉर्थ कराची में इंडस यूनिवर्सिटी कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हेल्थ केयर सिर्फ मरीजों के इलाज तक महदूद नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव भी जरूरी है। सिर्फ अस्पताल बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे। हम हर साल न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी वाले मुल्क पैदा कर रहे हैं। 2030 में इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देंगे। हेल्थ केयर तो लोगों को मरीज बनने से बचाने का नाम है और ये हॉस्पिटल्स की दीवारों के बाहर से शुरू होता है, हॉस्पिटल की दीवारों के अंदर नहीं शुरू होता। हेल्थ केयर तो स्टार्ट होता है बच्चे की पैदाइश से, फिर उसके बाद उसको वैक्सीन लगाने से। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि पाक भारत जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान को पोलियो वैक्सीन की फराहमी बंद कर दी, जिसके बाद अपनी वैक्सीन तैयार करने का फैसला किया गया। इस वक्त पाकिस्तान में मकामी सतह पर वैक्सीन तैयार नहीं हो रही, जबकि आने वाले बरसों में फॉरेन फंडिंग में कमी का खदशा है। 51% मदद हमें हमारे डोनर एजेंसीज कर रही हैं हमें इन वैक्सीन में 51%। 49% हमारा पैसा लगता है हुकूमत का। हर साल के गुजरने के साथ साथ ये फॉरेन फंडिंग हमें कम होती चली जाएगी और 2030 तक ये फॉरेन फंडिंग जीरो हो जाएगी। ये बाहर के डोनर एजेंसीज की सपोर्ट जीरो हो जाएगी 2030 तक। 100% पाकिस्तान को अपने फाइनेंसेस से ये वैक्सीन खरीदना पड़ेगी। वफाकी वजीर सेहत ने बताया कि पाकिस्तान में हर साल 62 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। 10,000 पैदाइशियों में 400 माओं की जान चली जाती है। मुल्क में 1 करोड़ 30 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं। अगर आवाम को साफ पानी फराहम कर दिया जाए तो 70% बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो सकती हैं। कैमरामैन हारिस अली के हमरा शोएब मुख्तार, सिटी 21। 35वें कौमी खेल रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम को पहुंचे। पाकिस्तान आर्मी ने 196 गोल्ड मेडल्स के साथ कायद आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फातिहीन में इनामात तकसीम किए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। 35वीं नेशनल गेम्स की पुरवकार इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। तकरीब में वजीर आला और सूबाई वजीर खेल की भी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी ने 196 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज को कायद आज़म ट्रॉफी दी। बेहतरीन कारकर्दगी की ट्रॉफी पुलिस को दी गई। 50 मीटर फ्री स्टाइल और ब्रिज स्ट्रोक तैराकी में कौमी रिकॉर्ड पर हमजा आसिफ को ट्रॉफी से नवाजा गया। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीमों को इनामात से नवाजा किया। तीसरी पोजीशन हासिल करने पर पाकिस्तान नेवी को प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ट्रॉफी दी गई। पाकिस्तान वापडा की टीम को रन अप बनने पर ट्रॉफी मिली। ट्रॉफियां तकसीम करने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल गेम्स के बाज़ाब्ता इख्तिताम का ऐलान किया। आर्मी की टीम ने 348 मेडल हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। आर्मी 196 गोल्ड मेडल, 96 सिल्वर और 56 ब्रांज मेडल हासिल किए। वापडा मजमूई तौर पर 229 मेडल हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। वापडा ने 84 गोल्ड, 71 सिल्वर और 74 ब्रांज मेडल हासिल किए। नेवी ने 108 मेडल हासिल करके तीसरी पोजीशन पर रही। 36 गोल्ड, 39 सिल्वर और 33 ब्रांज मेडल नेवी के हिस्से में आए। पंजाब ने 16 गोल्ड, 38 सिल्वर और 72 ब्रांज मेडल्स जीते। HEC ने 14 गोल्ड, 38 सिल्वर और 56 ब्रांज मेडल हासिल किए। सिंध मेडल्स के हुसूल में 6ठे नंबर पर रहा।
रहा। सिंध ने 11 गोल्ड, 25 सिल्वर और 57 ब्रांज मेडल हासिल किए। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 5वीं सालाना ग्रेजुएशन तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां 8 मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले 500 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिप्लोमा की असनाद तफ़वीज़ की गई। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि कराची चलता है तो मुल्क पलता है। अक्सर शेख की रिपोर्ट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की तकरीब, 8 शोबा जात के 500 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिप्लोमा की असनाद तफ़वीज़। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज मेडल से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि आपकी तालीम सब जागीरदाराना निज़ाम के हाथ में आ गई है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम जागीरदाराना निज़ाम में काम कर रहे हैं। कराची चलता है तो ये मुल्क पलता है। अब इस बात के मुंतज़िर है पाकिस्तान कि हम आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करें। कलम का कमाल ये है कि स्याही जब उसके कल्ब से गुजरती है तो रोशनाई बन जाती है। आइए इसी रोशनाई से पहले खुद रोशन हो ताकि पाकिस्तान भी रोशन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत मुझे यहाँ बुलाया। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन मुशर्रफ अली राजपूत ने इदारे की तालीमी खिदमत को सराहा। तो मैं सैल्यूट पेश करना चाहूँगा AIT के मैनेजमेंट को, उनके चेयरमैन साहब को, उनके तमाम ओल्ड बॉय अलीगढ़ एसोसिएशन को कि उन्होंने इतना अजीम कारनामा और उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द पाकिस्तान इकॉनमी वो किसी भी लेवल से कम नहीं है। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को कहना था कि इस कामयाबी के पीछे असातिज़ा की रहनुमाई और वालिदैन की दुआएं शामिल हैं। फील्ड तो बहुत अच्छा हो रहा है, जितनी मेहनत की थी हम उतना आगे आ चुके हैं मेहनत से अपने। हमने बहुत मेहनत की है, इनफैक्ट रात भर जाग कर पढ़ा हमने, तो ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट भी हमें मिला और हम इसके लिए बहुत खुश भी हैं। मजीद बैचलर्स के लिए मैंने एडमिशन ले लिया है अभी सर सैयद में। कराची के एक्सपो सेंटर में ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट ब्यूटी एशिया 2025 जारी है। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की मारूफ ब्रांड्स अपनी जदीद मसनूआत और स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स और हेयर केयर के जदीद रुझानात पेश कर रहे हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट। कराची एक्सपो सेंटर में ब्यूटी एशिया 2025 में शुरा की बड़ी तादाद में आमद। नुमाइश में जदीद स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप ब्रांड्स और ब्यूटी मशीनरी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। इवेंट न सिर्फ नए ब्रांड्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बल्कि सार्फिन को भी जदीद रुझानात से आगाही फराहम कर रहा है। स्किन एक्सपर्ट का कहना था कि आजकल स्किन केयर में नेचुरल और साइंसी बुनियाद पर तैयार की गई मसनूआत को तरजीह दी जा रही है। इवेंट जिसे ब्यूटी एशिया अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम करने और स्किन केयर के जदीद तरीके से मुतारिफ करवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमने अभी ब्यूटी एशिया में अपना बूथ लगाया है। वी एक्चुअली आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट बैक्ड ब्रांड विद 35 years of experience. We have a whole skincare line. We have clinics throughout Pakistan. We also have 2 other sectors where we do private labeling, and we also have another line जो कि aesthetic spas और clinics के लिए है. And now we are here in beauty exhibition. No steroid, no mercury, safe ingredients, जो active ingredients जो FDA approved है वो हम सब यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को, अपने पेशेंट्स को सही चीज़ गाइड कर सकें और उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर हैं। नुमाइश में आए शुरा का कहना था कि नुमाइश बहुत मालूमाती है। हमें एक ही जगह पर मुख्तलिफ ब्रांड्स और नई स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखने का मौका मिला है। जब हम इस तरह के मॉल्स में आते हैं तो हमें दूसरी चीज़ें पता चलती हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट भी बैठे हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो उनसे हम गाइडेंस भी ले सकते हैं कि हमें अगर अपनी स्किन के लिए लाजिम है कि हमारी बच्चियाँ भी हैं, हम लोग हैं, तो उनके लिए अब तक हमने परफ्यूम्स लिए हैं, हेयर ऑयल लिया है और इसके अलावा जो है लिपस्टिक वगैरह जो आपको पता नेसेसरी है। काफ़ी फ़र्क है, मतलब अगर आउटसाइड पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। 50 to 70% हमें मतलब डिस्काउंट पे जा रही है। ब्यूटी एशिया 2025 न सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री के फ़रोग का बाइस बन रहा है बल्कि सार्फिन और माहिरीन के दरमियान बराह रास्त राब्ते का मौसर जरिया भी है। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैप्पी होम स्कूल जमशेद रोड कैंपस के सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। नर्सरी से 1 क्लास तक के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों और रंगारंग टैबलोज में हिस्सा लिया। इस मौका पर स्कूल इंतजामिया ने कहा कि तालीम के साथ खेल बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। पढ़ाई के साथ साथ खेल की सरगर्मियां भी जरूरी। हैप्पी होम स्कूल जमशेद रोड कैंपस का सालाना स्पोर्ट्स डे। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग तकरीब का एहतमाम। नर्सरी से 1 क्लास के नन्हे फूलों की दिलचस्प रेसेस ने इवेंट यादगार बना दिया। वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने शानदार और दिलकश टैबलोज पेश किए जिन्हें शुरा की जानिब से खूब दाद मिली। मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल हुमैरा अमीन का कहना था कि तालीम के साथ खेल
बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए निहायत जरूरी है। स्पोर्ट्स डे का मकसद बच्चों में सेहतमंद सरगर्मियों और टीम स्पिरिट को फरोग देना है। हमेशा से हमारा ये रहा है कि हम बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पे बहुत काम करते हैं और हम उनको हर वो मौका पर फराहम करते हैं जिससे उस सब नशोनुमा में उनको मदद हासिल हो। सो हर साल HHS ये प्रोग्राम मुनक्कद करता है और पेरेंट्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ आती है और वो इसको खुद विटनेस करते हैं। स्पोर्ट्स हेड और असातिज़ा का भी कहना था कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने के मौके फराहम करें ताकि वो सेहतमंद और मुतवाज़िन जिंदगी गुजार सकें। इन स्पोर्ट्स डे में बच्चों की जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उस पे काम होता है। कुछ बच्चे जीतते हैं, कुछ बच्चे हारते हैं और ज़िंदगी में आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो हारते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और अगली दफ़ा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स डे की ये तकरीब बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखेर गई और एक सेहतमंद, फाल और पुरअमन माहौल का अमली मुजाहिरा बनी। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।